السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ملک و ریاست بھر میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ عیدگاہ میر عالم پر نماز عید کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع۔ بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہو کر مسلمانوں نے شکرانہ بجا لایا۔ وزیر اعلیٰ KCR وزیر داخلہ محمد محمود علی کی قیامگاہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو دی عید الفطر کی مبارکباد۔ ریاستی وزراء اور میئر بھی تھی موجود۔ مجلس قائدین نے متعلقہ حلقوں میں واقع عیدگاہوں میں نماز عید الفطر ادا کی۔ مصلیان سے ملاقات، عید الفطر کی مبارکباد۔ پہاڑی شریف عیدگاہ کے بشمول اضلاع میں واقع عیدگاہوں میں نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ ریاستی وزراء، متعلقہ اراکین اسمبلی اور اراکین پارلیمان نے عیدگاہ پہنچ کر مسلمانوں سے کی ملاقات۔ بی جے پی تبدیلی میں یقین رکھتی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بنگلورو میں میڈیا کانکلیو سے کیا خطاب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک و ریاست بھر میں عید الفطر نہایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی اور 29 روزوں کی تکمیل پر مسلمانوں نے اپنے رب کے دربار میں سر بسجود ہو کر شکرانہ ادا کیا۔ نماز عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع حیدرآباد میں عیدگاہ میر عالم پر دیکھا گیا، جہاں نماز عید 10 بجے ادا کی گئی۔ صبح 9 بجے سے مولانا ڈاکٹر سیف اللہ نائب شیخ الجامعہ جامع نظامیہ اور مولانا محمد حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا امیر امارت ملت اسلامیہ نے فضائل عید بیان کی اور مسلمانوں سے خطاب کیا۔ مولانا حافظ رضوان قریشی نے امامت کی اور خطبہ بھی دیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے علاوہ سیاسی، سماجی اور مذہبی قائدین نے نماز عید الفطر عیدگاہ میں پڑھی اور مسلمانوں کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ اس موقع پر مختلف حکومتی محکموں بشمول پولیس کی جانب سے وسیع تر بندوبست کیا گیا تھا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے نماز عید کے موقع پر عیدگاہ پہنچ کر مسلمانوں کو انہوں نے عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند IPS نے میڈیا سے بات بھی کی۔ آج اس عید الفطر کے موقع پر سبھی مسلمان بھائی بہن اور بزرگوں سبھی کو عید الفطر کا بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں۔ خوشی کا موقع ہے اور اس موقع پر حیدرآباد سٹی پولیس آپ سبھی کے ساتھ ہے اور آپ سب کا تعاون حیدرآباد سٹی پولیس کے ساتھ رہا ہے۔ سب کو بہت بہت مبارکباد ہو اور حیدرآباد سٹی پولیس سے شکریہ ادا میں آپ سب کو پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، جے ہند۔ میں اپنی جانب سے اور میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ ہم نے جو اس رمضان کے ماہ مبارک میں جو روزے رکھے، نمازیں پڑھی، دعائیں کی، صدقات، زکوٰۃ اور فطرہ دیا، اللہ اس کو ہمارے لیے ایک بخشش اور مغفرت کا وسیلہ بنائے، اور اس ماہ مبارک میں جس نے ہم کو صبر کی اور تقوی کی ٹریننگ دی، آنے والے 11 مہینے میں بھی ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں اور ہمارے وطن عزیز میں امن کو اور اس ملک کو مضبوط کریں۔ آپ تمام کو پھر سے عید الفطر کی مبارکباد۔ حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع دیکھا گیا اور صبح ہی سے لوگ مکہ مسجد میں نماز عید کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مکہ مسجد کا احاطہ پوری طرح سے بھر چکا تھا۔ 10 بجے نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ مولانا حافظ لطیف احمد نائب شیخ الفقہ جامع نظامیہ و امام مکہ مسجد نے امامت کی اور خطبہ بھی دیا۔ بعد نماز عید مصلیان ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر عید کی مبارکباد دیتے ہوئے بھی نظر آئے۔
ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے عید الفطر کے موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی کی قیامگاہ پہنچ کر انہیں مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ کا وزیر داخلہ محمد محمود علی اور ان کے افراد خاندان نے استقبال کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء پرشانت ریڈی، تلسانی سرینواس یادو، ستیوتی راٹھور، سینئر لیڈر کے کیشور راؤ، میئر جی ایچ ایم سی جی وجے لکشمی کے علاوہ ٹی آر ایس کے ارکان مقننہ مختلف کارپوریشن کے صدور بھی موجود تھے۔ مہمانوں کے اعزاز میں ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی وزیر داخلہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر نے ریاست کی عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے۔ साहब नमस्ते। మార్నింగ్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది ఎప్పుడు ఎవరు వచ్చారు کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی اور رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے نماز عید الفطر عیدگاہ قدیم مادنہ پیٹ میں ادا کی اور مسلیان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں عید الفطر کی مبارکباد بھی دی۔ اس موقع پر سید احمد پاشا قادری کے ہمراہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ کچھ دن قبل ہی احمد پاشا قادری نے مذکورہ عیدگاہ کے انتظامات کا جائزہ لیا تھا۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے علاقے مادنہ پیٹ میں جہاں حیدرآباد کی پہلی اور مشہور قدیم تاریخی عیدگاہ ہے، عیدگاہ میں آج نماز عید الضحیٰ ادا کیا گیا، عید الفطر ادا کی گئی۔ ٹھیک 10 بجے نماز کا آغاز ہوا، اس کے بعد خطبہ ہوا، دعا ہوئی۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر ہمارے کارپوریٹر صاحب، نمائندہ کارپوریٹر شفاعت صاحب یہاں پر عیدگاہ میں بلدی برقی آب رسانی کے عہدیداروں کے ساتھ دورے کر کے خصوصی انتظامات کیے، نمازیوں کو سہولت پہنچائے، اور ہمارے جماعت کے دیگر ساتھی بھی مظفر صاحب کونسلر سے صدور معتمدین تمام ان کے ساتھ تعاون کرے۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی مادنہ پیٹ عیدگاہ میں بڑا اجتماع رہا مسلمانوں کا نماز عید الفطر میں۔ میں اس موقع پر تمام عامیت المسلمین کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آنے والا سال خوشیوں کا سال بنا دے، ترقی کا سال بنا دے، خوشحالی کا سال بنا دے، کامیابی اور فتح نصرت کا سال بنا دے۔ آنے والا سال دشمنوں کے لیے ناکامی کا سال بنا دے، ان کی تباہی کا سال بنا دے، ان کے نیست و نابود ہونے کا سال بنا دے۔ انصاف پسندوں کی کامیابی عطا فرمائیے اور حق پرستوں کو فتح عطا فرمائیے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے نماز عید الفطر عیدگاہ اجالے شاہ واقع سعید آباد میں ادا کی۔ بعد از نماز عید الفطر انہوں نے مسلیان سے ملاقات کرتے ہوئے عید الفطر کی مبارکباد بھی دی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ کچھ دن قبل ہی مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے عیدگاہ اجالے شاہ کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے نماز عید الفطر کے لیے نقائص سے پاک انتظامات کی ہدایت دی تھی۔
फैजाबाद की जो शीशे में हमारा छक्का मार दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने ईदगाह बिलाली वाक़े हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक में नमाज ईद उल फितर अदा की और नमाज के बाद मुसल्लियान से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने ईदगाह हकीम शाह बाबा वाक़े हकीम पेट में नमाज ईद उल फितर अदा की और नमाज के बाद मुसल्लियान से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने हल्के कारवान में वाक़े ईदगाहों में नमाज ईद उल फितर के इंतज़ामात का जायज़ा लेते हुए बेहतरीन इंतज़ामात करने की हिदायत दी थी। तेलंगाना स्टेट हज हाउस में नमाज ईद उल फितर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने पढ़ाई, जबकि नमाज से कबल खिताब में उन्होंने मुसल्लियान को तलखीन की कि ईद सईद का जितना उम्दा और पाकिज़ा तसव्वुर दीन इस्लाम ने दिया है वो किसी और मज़हब में नहीं मिलता। यही वजह है कि मुसलमानों को ईद मनाने के सिलसिले में भी अहकामात और हिदायत आई हैं। उन्होंने मुसलमानों पर ज़ोर दिया कि वो रमज़ान के बाद भी अपनी इबादतों का सिलसिला जारी रखें। اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد عدد من قال وقام صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الانبياء خير البشر والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على خير مشفع रुकन खान सास कौंसिल और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी ने जगतियाल ईदगाह मैदान में मुसलमानों से मुलाकात करते हुए ईदगाह के मसले की यकसुई पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मज़हब से मुताल्लिक़ कोई भी मसला हो उसके हल के लिए बिला तफरीक़ सियासी जमात उसकी तायीद करेंगे। उन्होंने जगतियाल में नई ईदगाह के लिए अपनी तरफ से 10 लाख रुपये की इमदाद का भी ऐलान किया है। ईदगाह बोले तो ये तो अल्लाह की घर है साहब। यही अब जो अपन खड़े हैं ये ईद के वास्ते है। जब थोड़ा ये मतलब संगीन वक्त से गुजर रहे हमेशा के वास्ते है
ये झगड़ा इसको ख़त्म करना बोल के दोनों को थोड़ा नाराज़गी हुई, मगर हमेशा के वास्ते इसको हल करना बोल के ये हमेशा के वास्ते हल करके इसको कंपाउंड वाल बनवा के और आने वाले दिनों में कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। हथबंदी जो है आने वाले दिनों में कभी कोई उंगली नहीं उठा सकते, उससे कुछ नाराज़गी हो सकते। सियासत में अपन कुछ करना चाहे तो जो अच्छी चीज़ रहे तो नाराज़गी उठाने के वास्ते भी तैयार रहे, नाराज़गी उठाने के वास्ते भी तैयार रहे। यहाँ पे जो काम आज हम कामयाब होकर हमेशा के वास्ते जगचल आज अमन कायम है बोल के बोले तो ये ईद की मसला हल हो गया सर। अब कोई भी इसके ऊपर बात करने की बात नहीं। ऐसे ही यहाँ की जगचल की मुसलमान कौम जो है ये ईद के बस नहीं हो रहे, आइंदा जो है इसको और भी बढ़ाने। रियासती वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट की ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज के मौके पर खुसूसी दुआ में शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की उन्होंने मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना तनों में इत्तेहाद की अलामत बन गई है और चीफ मिनिस्टर KCR के फैसले ने इसमें अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में तमाम मज़ाहिब की रसूमात का एहतराम किया जाता है और हुकूमत की जानिब से बदकम्मा, रमज़ान और क्रिसमस के त्यौहारों को सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाया जाता है और ये वज़ीर आला KCR के विज़न का बेहतरीन सबूत है। ముస్లిం సమాజం అంతా కూడా ఎంతో పవిత్రంగా ఉపవాసాలు చేసి అల్లాహకు ప్రార్థనలు చేసి అల్లాహను ప్రతిరోజు కూడా ఈ ప్రపంచం అంతా సుఖంగా శాంతియుతంగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకొని చేసే ఉపవాస దీక్షలన్నీ కూడా ముగిసి మరి ఈరోజు పండగ జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। మరి సూర్యాపేటలో కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఈ రంజాన్ మాసాన్ని అతి పవిత్ర भोनगिर के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडे की ईदगाह मैदान में मुनक़िदा ईद उल फितर की नमाज की तक़रीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासती हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में वज़ीर आला KCR ने अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने का वादा तो किया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने अपने हल्के असम्बली गजवेल में गरीब आवाम के लिए पक्के मकानात बनाए हैं, लेकिन वो इस मामले में ज़िले नलगुंडे को नज़रअंदाज कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत के पास सिर्फ 4.5 माह हैं और अगले इंतखाबात में कांग्रेस की हुकूमत आने वाली है। गैस का रेट कम करते हो, गैस का रेट कम करते हो। మీరెవరు కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు టీవీలలో కానీ టీవీలలో ఛాన్స్లా ఎక్కడ కూడా ఆ విషయం రాయకూడదు। పోటీ చేసేది ఖాయం, ప్రజల ఆశీర్వాదం ఇస్తారని నమ్మకం ఉంది। మా కార్యకర్తలు, నాయకులు, ముస్లింలు, దళితులు, బలహీన వర్గాలు అందరి అండగా ఉండి 20 ఏళ్ళు స్వార్థంగా నిస్వార్థంగా ఇవాళ చూస్తున్న నాయకులు నాకు తేడా చూడండి। ఎక్కడ ఏ ఆపద ఉన్నా నేనే వస్తా। మొన్న నల్గొండకు వస్తే 4000 మంది ఉంటారు, 2 బాత్రూమ్లు ఉంటే 15 లక్షలు పెట్టి బాత్రూమ్ కొత్తగా కట్టించిపోయినా నేను ఎమ్మెల్యే లేకున్నా కానీ। అంటే అది ప్రజల మీద ఉండే ప్రేమ। ముస్లిం మత పెద్దలకు ఒక మౌలానా గారు ఇల్లు కాలిపోయి రోడ్డు మీద ఉంటే కూడా నేను ఎక్కడో ఢిల్లీలో ఉంటే నాకు తెలిసి తెల్లారు ఊరుకొచ్చిన। అంటే నేను ఇది ఓట్ల కోసం చేయట్లేదు, నా గుణమే అంత పేదలు బాగుండాలని। అందుకనే ఈరోజు గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెరిగింది। మోడీ గారు ఇంటికో ఉద్యోగం అన్నాడు, 15 లక్షలు ఇస్తున్నాడు, ఎక్కడ ఉద్యోగాలు లేవు, 15 లక్షలు లేవు అని గ్యాస్ మాత్రం 1500 రూపాయలు చేసిండు। మేము వస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీ భరిస్తూ 500 రూపాయలు
सनत नगर में वाक़ म्यूनसिपल वेलफेयर ग्राउंड में ईद उल फितर की नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा की गई। जमीयत अहले हदीस की जानिब से मुनक़िद ईद उल फितर की नमाज में हज़ारों मुसलमानों ने हिस्सा लेते हुए ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर मौलाना शेख सैयद हुसैन मदनी नायब अमीर तेलंगाना जमीयत अहले हदीस ने नमाज ईद उल फितर पढ़ाई। इस मौके पर ख़ाज़िन मोहम्मद अब्दुल ख़दीर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना के अलावा मुक़ामी मुसलमानों की कसीर तादाद ने ग्राउंड पहुँच कर ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने वेलफेयर ग्राउंड पहुंचकर तमाम मुसलमानों से मुलाकात की और रियासत के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर मौलाना शेख सैयद हुसैन मदनी ने ईद के खुतबे में मुसलमानों से खिताब करते हुए रमज़ान की तरह साल भर तक़वा इख्तियार करने और नमाज का अहतमाम करने का मशवरा दिया। उन्होंने मुसलमानों को रमज़ान की तरबियत हासिल करते हुए गुरबा व मसाकीन की मदद करने और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने का भी मशवरा दिया। पहाड़ी शरीफ ईदगाह में भी नमाज ईद उल फितर रिवायती तौर पर अदा की गई, जबकि मुसल्लियान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा DS चौहान IPS ने ईदगाह पहुंचते हुए मुसल्लियान से मुलाकात की और ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने बच्चों में चॉकलेट्स की तकसीम भी अमल में लाई। कमिश्नर पुलिस के हमरा रचाकुंडा कमिश्नरेट से वाबस्ता आला ओहदेदार भी मौजूद थे। ईदगाह कमेटी और मुकामी कायदीन ने इस मौके पर उन्हें तहनीत भी पेश की। मैं पहाड़ी शरीफ और पूरे राचाकुंडा कमिश्नर और ऐसे ही तेलंगाना के पूरी आवाम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और जितनी अमन सुकून के माहौल में हर जगह ईद का जो फेस्टिवल है मनाया जा रहा है, उसके लिए हमारी तरफ से भी सभी मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। आप लोग देख ही रहे हैं और हम भी इस खुशी में आप सभी के साथ शरीक हैं। मैं दुआ करता हूँ कि ईद के मौके पर अल्लाह ताला तेलंगाना को, हैदराबाद को, राचाकुंडा को और वहाँ की आवाम को पुरसुकून, अमन और तरक्की बख्शे और सभी लोग यहाँ के जो है खुशहाल हों। शुक्रिया। BRS लीडर कार्तिक रेड्डी ने नमाज ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह पहाड़ी शरीफ पहुंचकर मुसल्लियान से मुलाकात की और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद भी पेश की। उनके हमरा मुकामी BRS कायदीन, काउंसलर्स व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मुकामी कायदीन ने ईदगाह पहाड़ी शरीफ पहुंचकर मुसल्लियान से मुलाकात की और उन्हें ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद भी पेश की। गांव के हो या अपने जलपली म्यूनसिपालिटी के तमाम हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों को ईद का मुबारक कहते हुए, कभी हमारे वालदा ने ना वोटों के लिए या सियासत के लिए काम नहीं करी। हमारा ख़ानदान, मेरे को याद है बचपन में मेरे अब्बा हमारे को या साहब कहने लेके आते थे दरगाह पे। तकरीबन हमारी ख़ानदानी ताल्लुक़ है ये गांव से और यहाँ दरगाह से। बहुत खुशी होती है कि आज ईद के दिन अब्दुल्ला भाई जो बताए कि अम्मा की सदारत में इस ईदगाह का हो या दरगाह का काम हो या जलपली म्यूनसिपालिटी के बुनियादी कामों को जो से भी काम है हर चीज़ की तालीम होगी। और दुआ करिए और एक बार सब भाई बहनों को ईद की मुबारक। शुक्रिया। विकाराबाद ज़िले तांडूर मंडल के चंगेज़पुर रोड पर वाक़े ईदगाह मैदान पर ईद उल फितर की नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा की गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने शिरकत की। इस मौके पर ईदगाह मैदान पर मुकामी रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी, रुकन खानसास कौंसल, साबिक़ा वज़ीर ट्रांसपोर्ट डॉक्टर P महेंद्र रेड्डी, तांडूर टाउन सदर MIM अब्दुल हादी और दीगर तमाम सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारान पहुँच कर उन्होंने मुसलमानों से मुलाकात की और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो तांडूर की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की तरक्की के लिए काम कर रही है। दूध का, स्कूलों के फीस का तमाम अखबार के टैक्स भरते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि वो बिल्कुल बेबसी से काम करते हैं। कमिश्नर साहब आए हैं, काम के लिए कहते हैं कुछ काम नहीं होता। जो भी काम ईदगाह ग्राउंड का काम है, ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी मुतवज्जो हो बहुत देर की
जोगुलांबा गढ़वाल ज़िले में ईद उल फितर की नमाज खुशू व खुज़ू के साथ अदा की गई। ज़िले मरकज़ में वाक़ ईदगाह मैदान में मुसलमानों की कसीर तादाद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर मौलाना उस्मान ने मुक़द्दस माह रमज़ान के बारे में तफ़सीलात बताईं और तमाम मुसलमानों को रमज़ान के अलावा दीगर अय्याम में भी इबादत का एहतमाम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी, साबिक़ वज़ीर डी के अरुणा, ज़िले परिषद चेयरपर्सन सरिता और मजलिस के सदर रमना बादशाह ने ईदगाह मैदान पहुँच कर मुसलमान भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक के महीने में मुसलमान एक महीने के रोज़े रखता है और खुसूसी दुआएं बड़े ही अक़ीदत के साथ मांगता है। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना ऐसा है जिसमें हर गरीब शख्स बेहतर ज़िंदगी गुजारता है और अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े भी रखता है। मैं ईदगाह कमेटी के वाले अस्सलाम वालेकुम वनशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व हुवल अफ़्वुल गफ़ूर वनशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। राजना सिलसिला ज़िले विमलवाड़ा में तमाम मुसलमानों ने ईद की नमाज अक़ीदत व एहतराम के साथ अदा की। इस मौके पर मुक़ामी ख़तीब मौलाना ने खुतबे में मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने प्यारों के साथ मोहब्बत और मेहरबानी के साथ पेश आना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ बदगुमानी और गलत रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। फिर अपने ज़िंदगी में बेटे को आलिम दीन बनाने के लिए क्यों इसलिए कि आज हम यहाँ बैठ के ये दुआ नहीं कर सकते और आपको पसंद भी नहीं आएगी। हम अगर बैठ के दुआ करें, या अल्लाह जितनी तनख्वाह हमारी है, पढ़ के दोगाना ईद का जब मुसलमान आपस में मिलते हैं, उल्फत की हवाएं चलती है, अखलाक के बीचे खिलते हैं, जिस शान से निर्मल ज़िले मधुल के तमाम मंडलों में हफ्ते के रोज़ ईद उल फितर जोश व खरोश के साथ मनाई गई। तफसीलात के मुताबिक निर्मल मुस्तकिल के अलावा मधुल बासर, तानूर, लोकेश्वरम, कंटाला, गोबीर, नरसापुर मुस्तकिल में ईद उल फितर को रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस दौरान ख़तीब इमरान ने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। कमरम भीम आसिफाबाद ज़िले कागज़ नगर में ईद उल फितर की नमाज पुरखुलूस अमन व सुकून के साथ अदा की गई। कागज़ नगर जामा मस्जिद के ख़तीब व इमाम हज़रत मौलाना इंतखाब आलम ने कागज़ नगर के कदीम ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ाई। इस मौके पर सरपुर तालुक़ा के रुकन असम्बली और दीगर सियासी क़ायदीन ने ईदगाह पहुँच कर तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान महकमे पुलिस की जानिब से ईदगाह पर भारी बंदोबस्त भी किया गया था, जिस पर ईदगाह कमेटी ने पुलिस डिपार्टमेंट और बल्दिया के अहदेदारों से इज़हार तशक्कुर किया है। ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا بزيارة حرمك وحرم نبيك وحبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا اغفر لنا जगतियाल में भी ईद उल फितर बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। जगतियाल की कदीम ईदगाह में ईद की नमाज मौलाना मुश्ताक अहमद क़ासमी, इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद और खिले ईदगाह में हाफिज़ अबरार शरीफ ने पढ़ाई। ईद की नमाज के लिए हुकूमत की जानिब से ईदगाह पर बेहतरीन इंतज़ामात किए गए थे और हज़ारों मुसलमानों ने पुरअमन तरीक़े से ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर सदर मिल्लत इस्लामिया अब्दुल बारी और सरपरस्त आला सैयद जमील अहमद ने तमाम का ईदगाह पर बेहतर इंतज़ामात करने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर एम संजय कुमार और रुकन खानसाज कौंसल टी जीवन रेड्डी ने ईदगाह पहुँच कर मुसलमानान जगतियाल को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रुकन असम्बली संजय कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जगतियाल हल्के में हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दामात की तफसीलात बतलाईं। उन्होंने कहा कि जगतियाल में हुकूमत की जानिब से ईदगाह की तामीर और तोसी के लिए लाखों रुपये का फ़ंड मख्तस किया गया है, जबकि तेलंगाना में वज़ीर आला KCR की क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम तबक़ात की तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है।
نلگنڈے میں عید الفطر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ عیدگاہ نلگنڈے میں خطیب عیدین مولانا شاہ سید احسان الدین قاسمی نے اپنے خطاب میں عوام الناس کو آخرت کی فکر کرنے اور آپسی بھائی چارے کے علاوہ اتحاد برقرار رکھنے پر زور دیا۔ مولانا ضیاء الدین مظاہری نے امامت کی اور خطبہ دیا۔ بعد ازاں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے خطیب عیدین سے ملاقات کرتے ہوئے عید کی مبارکباد پیش کی، جن میں رکن پارلیمان بھونگیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، رکن اسمبلی نلگنڈا بھوپال ریڈی، صدر نشین بلدیہ مندڑی سیدی ریڈی، کتا امیت ریڈی، پلی رام راجو، ضلع کلکٹر ونے کرشن ریڈی، ضلع محتمم پولیس اپورو راؤ قابل ذکر ہیں۔ اس موقع پر رکن پارلیمان کومٹ وینکٹ ریڈی نے تیقن دیا کہ وہ عیدگاہ کے تعمیری کام میں اپنی جانب سے ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ ریاست آندھرا پردیش میں بھی تمام مسلمانوں کی جانب سے جوش و خروش کے ساتھ عید الفطر منائی گئی۔ ہر طرف نماز عید کی ادائیگی کے روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ اننت پور ضلع رائے دروگ شہر کے بلہاری روڈ عیدگاہ اور اس کے علاوہ جامع مسجد اور درگاہ مسجد میں بھی نماز عید الفطر پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر نماز عید الفطر کے لیے بہترین انتظامات بھی کیے گئے تھے، جہاں بڑے بڑے اجتماعات دیکھنے کو ملے۔ ساتھ ہی ہندوستان میں امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی اور رحمت کی بارش کے لیے بھی دعا مانگی گئی۔ لیکن عید اس کی ہے جس نے رمضان کو رمضان جانا ہو، جس نے رمضان میں اللہ کی عبادت کی ہو، جس کے اللہ کے یہاں اس کے روزے اور تراویح قبول ہوئی ہوں۔ معزز سامعین، اللہ کا بہت بڑا فضل، یہ بدرا ہوا مہینہ جس میں اللہ نے ہمیں 5 جمعہ عطا فرمایا۔ رمضان میں ہر سال 4 جمعہ آتے ہیں، لیکن اس سال جو ہے آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ملک اور ریاست بھر میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ عیدگاہ میر عالم پر نماز عید کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع۔ بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہو کر مسلمانوں نے شکرانہ بجا لایا۔ وزیر اعلیٰ KCR وزیر داخلہ محمد محمود علی کی خیامگاہ پہنچ گئے، مسلمانوں کو دی عید الفطر کی مبارکباد۔ ریاستی وزراء اور میئر بھی تھی موجود۔ مجلس قائدین نے متعلقہ حلقوں میں واقع عیدگاہوں میں نماز عید الفطر ادا کی، مصلیان سے ملاقات، عید الفطر کی مبارکباد۔ پہاڑی شریف عیدگاہ کے بشم الاضلاع میں واقع عیدگاہوں میں نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ ریاستی وزراء، متعلقہ اراکین اسمبلی اور اراکین پارلیمان نے عیدگاہ پہنچ کر مسلمانوں سے کی ملاقات۔ بی جے پی تبدیلی میں یقین رکھتی ہے، وزیر داخلہ امت شاہ نے بنگلور میں میڈیا کانکلیو سے کیا خطاب۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔